بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو پھولوں کی سیج میں رکھ کر اس کی پرورش کرائی۔ بچہ بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کا احسان فراموش کیوں ہو گیا؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے وقت دل دکھتا ہے، مگر تیرے حکم کی نافرمانی کی مجال کہاں؟ ہاں، ایک واقعہ ایسا گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک نہیں بھلا سکا۔ وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ تیرے حکم سے ایک سمندر کی لہر میں پھنس گیا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ جہاز میں سوار سارے لوگ مارے گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں تھی اور دوسرا اس کا دودھ پیتا بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم پر بہے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ میں ماں اور اس کے بیٹے کے بچ جانے سے بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی روح کو قبض کر لو۔ میں نے مولا کریم تیرے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہو کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، اور جب میں نے اسے چھوٹے سے بچے کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ اب یاد آئی ہے تو آنکھیں آنسو سے بھیگ گئی ہیں۔ پھر حکم الہی ہوا۔ کیا تجھے پتا ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ ہی ظاہر اور باطن جانتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس بچے کا کیا بنا۔ آپ ہی ہمیں اس سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ بچہ کس حال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دیں۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے پھولوں کی سیج بچھا دیں۔ سورج سے کہا، اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا کہ بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے کوئی بھی جانور بچے کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت سریلی آوازیں نکالتے رہتے تھے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے کے اوپر سے آہستہ آہستہ گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوبصورت اور صحت مند بہادر ہو گیا۔ وہ بچہ بہت خوبصورت نوجوان بنا۔ ہم نے اس بچے کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کی۔ اے اسرائیل علیہ السلام، تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے اور اس وقت کیا کر رہا ہے۔ اس بچے کے پاس کتنی طاقت ہے، وہ کیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک دن ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ اس بادشاہ کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تاج و تخت کا مالک بن گیا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر غرور اور تکبر کرنے والا بنا۔ غرور اور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے نبی کو بھی آگ میں پھینک دیا۔
इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए पूरी कायनात के खालिक और मालिक, तेरी भेद तू ही जाने। मैं उस सरकश बच्चे की हालत से बेखबर होने की वजह से दिल में ख्याल और मलाल लाता रहा। ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, उस बच्चे ने मेरा क्या शुक्रिया अदा किया। दूसरों के लिए तो माँ बाप की परवरिश हिजाब बन जाती है, मगर उस नालायक ने तो बिला वास्ता अपनी जेब में बहुत से मोती हमसे पाए थे। वो बच्चा नमरूद बनकर इस वक्त एक बड़े मुल्क का बादशाह है और उसी ने मेरे खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया और अब खुदा का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और हुक्म ना मानने वालों को बहुत सख्त सजा देता है। हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया कि वो तमाम लोगों को गैर अल्लाह की इबादत से रोकें और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ लाएं और बुत परस्तों को बताएं कि वो अल्लाह ही है जिसने तुमको इबादत के लिए पैदा किया, तुमको बुतों के लिए नहीं पैदा किया। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौका पाकर मंदिर चले गए, तमाम बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक बड़े बुत के। जब बुतों के पुजारियों ने बुतों को टूटा हुआ पाया तो ये बात जाहिर हो गई कि इन बुतों को तोड़ने वाला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। चनाचे उनको पकड़कर मंदिर में लाया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में बुतों की बेबसी जाहिर करने के लिए कहा, उनके बड़े बुत से दरियाफत करें, भला एक बुत क्या बता सकता है। इससे बुतों की बेबसी जाहिर हो गई और साथ ही ये भी जाहिर हो गया जो बुत अपने आप को नहीं बचा सकते वो दूसरों की क्या हिफाजत करेंगे। चनाचे फैसला किया गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सख्त सजा दी जाए। नमरूद के हुक्म से आग जलाई गई, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल दिया गया। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि नमरूद ने जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई है उसको ठंडा कर दो। तो फरिश्तों ने फौरन आग को ठंडा कर दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो आग फौरन ठंडी हो गई। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच गए। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा है जिसने तुम्हें आग से बुझा लिया, क्या तुम आग से बाहर आ सकते हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों नहीं। फिर नमरूद ने कहा, अगर तुम आग के अंदर बैठे रहो तो क्या आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होगा, ये आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बाहर आने की दुहासत की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आ गए जबकि आग उस वक्त भी जल रही थी। नाजरीन, नमरूद ने जब ये मौजज़ा देखा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और खुदा की राह में 4000 गाय की कुर्बानी पेशकश की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक तुम अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाओगे तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। नमरूद ने खुदा की तलाश शुरू की ताकि उससे लड़ने के लिए पालतू अकाबों के जरिए खुदा की तरफ परवाज की। आसमानों में जब नमरूद खुदा की जुस्तजू से ना उम्मीद हुआ तो एक फरिश्ता इंसानी रूप में नमरूद के पास आया और उसे नसीहत करने लगा, ए इंसान, खुदा से डरो और उसकी नाफरमानी से बचो, क्योंकि खुदा की कुदरत और ताकत तुमसे और तुम्हारी फौज से कई गुना ज्यादा है। अगर वो चाहे तो तुझे हलाक कर दे। लेकिन नमरूद ने खुदा की बादशाही को मानने से ही इनकार कर दिया और खुदा से मुकाबला करने के लिए अपने आप और फौज को तैयार कर लिया। फिर फरिश्ते ने नमरूद को अपना लश्कर जमा करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। 3 दिन के बाद खुदा के हुक्म से
मच्छरों ने नमरूद के लश्कर पर हमला किया, जिसके नतीजे में सारी फौज फरार हो गई। कुछ मुद्दत बाद वही फरिश्ता नमरूद के पास फिर आया। उसके लश्कर की शिकस्त का बता देता है और खुदा पर ईमान लाने का कहता है, और अगर ईमान कबूल ना करोगे तो इस सूरत में तुम्हारी मौत वाक़या हो जाएगी। मगर इस दफ़ा भी नमरूद ने ईमान की दावत को कबूल नहीं किया। नाजरीन, फिर अल्लाह ताला ने नमरूद पर एक मच्छर को मुसल्लत किया, जो नाक के रास्ते से नमरूद के दिमाग में चला गया। नमरूद के सर में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गई। सर की दर्द की वजह से वो अपने हाथ अपने सर पर मारता, जिसकी वजह से मच्छर कुछ लम्हे के लिए आराम से बैठ जाता है। यूं उसे भी आराम मिलता। जो भी नमरूद के पास मिलने के लिए आता, नमरूद के हाथ का बोसा लेने के बजाय उसके सर पर जूते मारता, ताकि नमरूद को सुकून मिल जाए। रवायात के मुताबिक नमरूद का ये हाल 40 साल तक रहा। फिर नमरूद हिलाक हो गया। इरशाद बारी ताला है कि इंसान दो तरह के होते हैं। एक वो जो अपने मौसम के अनामात को देखकर सच्चे वफादार बन जाते हैं। बाज वो होते हैं जो सजा के डर से ताबिया होते हैं। इस हदीस में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर एहसानात गनाए हैं ताकि वो फर्मा बरदार बंदे बन जाएं। और अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपने किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता। इस वजह से उसके बंदे भी एक दूसरे पर जुल्म ना करें। अल्लाह ताला ही सबको हदायत देता है और वो ही सबको खाने पीने पहनने का सामान भी पहुंचाता है। इस वजह से उसी से ही हदायत तलब करनी चाहिए और उससे ही जिस्मानी ज़रूरियात तलब करनी चाहिए। और अल्लाह के पास इतना ज़्यादा ख़जाना है, अगर दुनिया के तमाम लोग अपनी ज़रूरियात और मुरादें तलब करें तो अल्लाह हर एक की ज़रूरत को पूरा कर देगा, लेकिन उसके ख़जाने में कमी नहीं होगी। इंसान के अमाल का दफ्तर अल्लाह ताला के यहाँ खुला हुआ है। क़यामत के रोज़ उसे उसके अमाल की बिना पर जज़ा सज़ा मिलेगी। इसी तरह अगर किसी को अच्छाई पहुँचे तो अल्लाह का ही शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर किसी इंसान को कोई नुकसान पहुँचे तो अपने नफ्स को कंट्रोल करे, क्योंकि वो नुकसान उसके हाथों का कमाया हुआ है। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। कुरान पाक में आता है कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। इंसान जो बीज बोता है वो ही काटता है। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया।